हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8वीं के अंग्रेजी विषय के चैप्टर नंबर 4.4 द अनसिंकेबल शिप इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ की शुरुआत वार्मिंग अप में कुछ चिट चैट के से संबंधित कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, वहाँ से हम इस पाठ को शुरू करेंगे। हैव यू हियर्ड, रीड, सुना या देखा या पढ़ा अबाउट नेचुरल क्लाइमिटी? What are the different possibility is a long journey? Do you know the sea voyage? How is the journey? Is the sea different from the other? Why should we have alternative in the journey? इन प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। Have you here read about natural calamities? क्या तुमने प्राकृतिक आपदा के विषय में कभी सुना अथवा पढ़ा है? Yes, आंसर इस प्रकार, yes, I have read about natural calamities, earthquake, but floods, etc. in newspapers. Second, what are the different possibilities in long journey? लंबी दूरी की यात्रा में घटित हो सकने वाली विभिन्न संभावनाएं क्या हैं? Is a long journey some unexpected thing are possible, especially accident, breakdown on the way, shipwreck, plane crash, etc. Do you know the sea voyage? क्या तुम्हें समुद्री यात्राओं के बारे में पता है? Yes, I know what is the sea voyage, but I have not experienced it. Fourth, how is the journey in the sea different from other? समुद्री यात्रा अन्य यात्राओं से किस प्रकार अलग है? In other journeys, especially on the road, we can expect some relief or help in case of accident, mishap. But journey in the sea, though seem comfortable, can be fatal if anything goes wrong in the sea. फिफ्थ, वाई शुड वी हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी? यात्रा में हमारे पास विकल्प क्यों होने चाहिए? इफ़ देयर इज़ अ ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट ऑफ द व्हीकल और एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द रेगुलर रूट, वी शुड हैव सम काइंड्स ऑफ अल्टरनेटिव, फॉर एग्जांपल चेंजिंग द रूट और व्हीकल. ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल इन द रोड जर्नी और ट्रेन जर्नी ओनली. ऊपर हमने चिट चैट में जो प्रश्न दिए गए थे उसके उत्तर हमने देखे. अभी यहाँ पे फर्स्ट, रीड द लाइन्स given below, imagine yourself in the situation and answer the questions based on your imagination. अभी जो आगे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में तुम्हें अपनी कल्पना के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देना है. आफ्टर द गेम्स प्रैक्टिस माय फ्रेंड एंड आई आर हैंग्री, वी डिसाइडेड टू गो टू snacks outlet on third floor in the huge 6 stories mall. On the way, just as we paid our bill and were about to leave, there was a ear-shattering blast, a loud explosion on the first floor. ऐसे समय में क्या करना है? What was your first reaction? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है. Our immediate reaction was one of shock, and then we fled out of the mall. What did some alert sensible people? कुछ सतर्क व समझदार लोगों ने क्या किया? They were trying to calm down the people and helping children and women to escape from the mall. What was the damage and danger? वहाँ क्या नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ? Fire broke up on the third floor and was roaring upward. The blast had damaged everything with structure of the mall. The fourth floor was in danger. Who came the rescue? बचाव कार्य के लिए कौन लोग पहुँचे? The police, the fire brigade and the local people came to rescue. How many people were injured and killed? कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मारे गए? 4 women and 2 men were injured and fortunately no one was killed. Next question, what effect did the instance leave on is your mind? इस घटना का तुम्हारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा? We were shocked and were still trembling with fear. Though we were out of danger, we thanked God for saving us from the danger. Second one is, the word unsinkable has prefix as well as suffix. The root base word sink, इसमें सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है. तो इस तरह की गिव द रूट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग. अनकम्फर्टेबल, अनहैप्पीनेस, तो इसका कंफर्ट, हैप्पी, सिक्योर इस तरह से है, तो हम उसको अलग करके लिखना है.
कि इसमें जो प्रीफिक्स और सफिक्स उसको अलग करके जो मूल शब्द है, रूट वर्ड है, उसको अलग करके लिखना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं: अनकम्फर्टेबल, अनहैप्पीनेस, इनसिक्योरिटी, इनएक्यूरेसी, इंडिपेंडेंस, ईमेलर, अनलूजन, डिसेबिलिटी, डिसअपीयरेंस, अनफ्रेंडली, इंटरेक्टिव, मिसअंडरस्टैंडिंग। अब इन शब्दों में से मूल शब्द को अलग करना है। अनकम्फर्टेबल में कंफर्ट, अनहैप्पीनेस हैप्पी, इनसिक्योरिटी सिक्योर, इनएक्यूरेसी एक्यूरेट, इंडिपेंडेबल इंडिपेंडेंस डिपेंड, ईमेलर मेल, अनलूजन लूज, डिसेबिलिटी एबल, डिसअपीयरेंस अपीयर, अनफ्रेंडली फ्रेंड, इंटरेक्टिव एक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड। बी, राइट टू वर्ड ईच विद द फॉलोइंग प्रीफिक्स। यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं। राइट टू वर्ड ईच विद द फॉलोइंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब एंटी, एंटीसेप्टिक, एंटी सोशल, डिसलाइक, डिस्करेज, नॉन इंग्लिश, नॉन वायलेंस, रीअरेंज, रिप्लेस। एंड सी, राइट टू वर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स। यहाँ सफिक्स जुड़ना है, फुल जुड़ना है, फुल, फेथफुल, डाउटफुल, आउस, इनकरेजेस, क्यूरियस, लेस, सेंसलेस, बेसलेस, ली, डेडली, प्रॉम्प्टली। विद्यार्थी मित्रों, अब हम शुरू करेंगे पाठ की शुरुआत। होती है द अनसिंकेबल शिप, कभी न डूबने वाला जहाज। ये ऑन द 10th अप्रैल 1912 the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. उसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था। The word Titanic means huge, का मतलब होता है बहुत बड़ा। This was her maiden voyage, that is her first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. मैं अगर हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि 10 अप्रैल 1912 को विश्व का सबसे बड़ा विशाल आलीशान जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए रवाना हुआ। उसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक अर्थात विशाल। इस जहाज की यह पहली समुद्री यात्रा थी। 2000 से अधिक यात्रियों को लेकर निकले इस जहाज को अटलांटिक महासागर पार करना था। टाइटैनिक एक तैरते हुए शहर जैसा था। Everyone called the Titanic is finest ship in the world. Everyone was proud of her. She was as tall as a building with 15 stories inside. She was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools. हम आपको साथ साथ में इस जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका हिंदी में उसका अर्थ बताते चलेंगे। सभी टाइटैनिक को विश्व का सर्वोत्कृष्ट जहाज कह रही थी। हर किसी को उस पर बहुत ही गर्व था। वह जहाज एक 15 मंजिली इमारत जितना ऊंचा था। आंतरिक रूप से वह एक विशाल होटल जैसा था जिसमें भव्य सीढ़ियाँ, भोजन गृह, दुकानें और तरण तालाब भी थे। Everyone thought that the Titanic could never sink. They called her the unsinkable ship. The ship's builders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. सभी का ऐसा मानना था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। वे उसे कभी न डूबने वाला जहाज के नाम से संबोधित करते थे। जहाज की निर्माता इस बात को लेकर इतने आश्वस्त थे कि
उन्होंने जहाज़ पर बहुत ही कम जीवन रक्षक नौकाओं की व्यवस्था की थी। द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल। द पैसेंजर्स वे प्राउड बिकॉज दे वेर ट्रेवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। दे फेल्ट सेफ। यात्रा बहुत ही आरामदायक थी। विश्व के सर्वोत्तम जहाज में यात्रा कर रहे यात्री गौरवान्वित थे। वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। Then came the night of 14 April. The sky was clear and the sea was calm. Many of the passengers were asleep. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the ship. Suddenly, at 11:40 p.m., the man saw something. He grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg! he called. वो जोर से चिल्लाया। और फिर 14 अप्रैल की रात आई। आसमान साफ था। आई फिर 14 अप्रैल की रात। द स्काई वॉज क्लियर एंड सी वॉज काम। आसमान साफ था और समुद्र शांत। बहुत से यात्री सोए हुए थे। कप्तान स्मिथ जानते थे कि आसपास कई हिमखंड हैं, इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को जहाज़ के सबसे ऊपरी हिस्से से निगरानी करने के लिए कह दिया। अचानक 11:40 पर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा देखा कि डर के मारे उसका शरीर ठंडा पड़ गया। एक विशाल हिमखंड एकदम टाइटैनिक के रास्ते में डटकर खड़ा था। हिमखंड, आइसबर्ग। वो जोर से चिल्लाया। कैप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. A shower of ice fell onto the deck and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower deck. Most passengers heard nothing and स्लिप्ड ऑन। कप्तान स्मिथ ने हिमखंड से दूर रखने के लिए टाइटैनिक को मोड़ने का भरसक प्रयास किया, पर बहुत ही धीमी गति से अपनी दिशा बदल रहे जहाज़ का एक भाग हिमखंड से टकरा गया। जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर बर्फ़ की बौछार हुई। हिमखंड ने जहाज़ के उस हिस्से में छेद कर दिया। जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। अधिकांश यात्रियों ने कुछ सुना ही नहीं और वे सोए रहे। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लडिंग थ्रू द शिप। दे न्यू द टाइटैनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर। द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग। न डूबने वाला जहाज डूबने जा रहा था। एट 12:15 AM, कैप्टन स्मिथ सेंट urgent message on the ship's radio asking for help, Titanic sinking, come quickly. Then he ordered the crew to wake all the passengers up. कप्तान स्मिथ और उनका दल जहाज में घुस रहे। प्रचंड प्रवाह जल प्रवाह को रोक नहीं सके। टाइटैनिक बहुत बड़े संकट में है। उन्हें यह मालूम हो गया था कि कभी न डूबने वाला जहाज डूब रहा था। कप्तान स्मिथ ने जहाज़ की रेडियो पर मदद की गुहार लगाते हुए अत्यावश्यक संदेश भेजे। बचाओ, टाइटैनिक डूब रहा है, जल्दी आओ। इसके पश्चात उसने अपने दल के साथियों से सोए हुए सभी यात्रियों को जगाने के लिए कहा। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया was only 20 miles away, but she did not receive Titanic message. Her radio was turned off and the radio operator was asleep. द कैलिफोर्निया नामक एक जहाज़ केवल 20 मील की दूरी पर था, पर उसे टाइटैनिक का संदेश नहीं मिला क्योंकि उसका रेडियो बंद था और रेडियो का चालक सो रहा था। Another ship called the Carpathia heard the Titanic's call and sailed at full speed toward her. Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. करफैतिया नामक एक दूसरी जहाज ने
टाइटैनिक की मदद की पुकार सुनी और तीव्र गति से उसकी ओर चल पड़ा। दुर्भाग्य से करपथिया वहाँ से बहुत दूर था, इसलिए उसे टाइटैनिक तक पहुँचने में 3 घंटे लग गए। मीनवाइल इसका अर्थ ये हुआ, द टाइटैनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली, धीरे धीरे डूब रहा था। द क्रू लोअर्ड द लाइफ बोट्स इनटू द सी, बट देयर वाज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर फ्यू हंड्रेड पैसेंजर्स। द टाइटैनिक हैड मोर देन 2000 पीपल ऑन बोर्ड। द शिप began to tilt into the sea. People began to jump from the deck into the ice cold water. बड़ा ही इस दौरान टाइटैनिक बहुत तेज़ी से डूब रहा था। कर्मचारियों ने जीवन रक्षक नौकाओं को समुद्र में उतारना शुरू किया, पर उन नौकाओं में कुछ सैकड़ों यात्रियों के लिए पर्याप्त स्थान था, जबकि टाइटैनिक पर उस समय 2000 से अधिक लोग मौजूद थे। जहाज़ समुद्र में झुकने लगा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज़ की छत से ठंडे बर्फीले पानी में कूदने लगे। With its light still shining, the Titanic stood upright a few minutes. Then at 2:20 a.m. on 15th April, she vanished into the sea. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship. रोशनी से जगमगाता टाइटैनिक कुछ मिनटों के लिए समुद्र में सीधा खड़ा था। अंततः 15 अप्रैल की रात 2:20 पर वह समुद्र में विलीन हो गया। जहाज़ में मौजूद लगभग 1500 लोग डूब गए। कप्तान स्मिथ और उसमें अधिकांश कर्मचारी भी जहाज़ के साथ पानी में समा गए। द Carpathia arrived at 3:40 a.m. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. They also found chairs and pieces of wood floating on the water, but almost all the people in the water had drowned and died of cold. The Carpathia was too late to save them. 3:40 पर करपथिया वहां पहुंचा। जहाज के कर्मचारियों ने जीवन रक्षक नौकाएं खोजकर 700 लोगों की जान बचाई। उन्हें पानी में तैरती हुई कुर्सियां और लकड़ी के टुकड़े भी मिले, पर लगभग सभी लोग या तो डूब चुके थे या ठंड के कारण मर गए थे। उन्हें बचाने में करपथिया ने बहुत देर कर दी। द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन शिप. They asked why ship carry such few lifeboat and why they turn up their radios. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radio working every hour of the day and night. टाइटैनिक के डूब जाने की घटना ने लोगों को जहाज़ पर यात्रियों की सुरक्षा के बारे में गंभीर रूप से विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। जहाज़ पर जीवन रक्षक नौकाओं की संख्या इतनी कम क्यों थी और रेडियो बंद क्यों रखा गया था, जैसे प्रश्न लोग पूछने लगे थे। वर्ष 1913 में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जहाज़ में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में जीवन रक्षक नौकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि जहाज़ों को अपना रेडियो दिन रात प्रत्येक घंटे कार्यरत रखना चाहिए। इन 1985 साइंटिस्ट सेंट अ सबमरीन टू लुक फॉर द wreck of the Titanic. They found the ship laying in two pieces on the ocean floor at the depth of around 4,000 meters, 13,000 feet, 13,000 feet. Later they took photographs of the wreck, brought small parts into the surface of the water. वर्ष 1985 में वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए एक पनडुब्बी भेजी। उन्हें महासागर की तलहटी में लगभग 4,000 मीटर 13,000 फीट की गहराई में वह जहाज़ के दो टुकड़ों में विभक्त मिला। उन्होंने जहाज़ के मलबे का छायाचित्र खींचा, उसके छोटे छोटे हिस्सों को पानी की सतह से बाहर ले आए। There were many stories of bravery on the terrible night in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden
voyage. It is a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. इसका अर्थ ये है कि अप्रैल 1912 की उस भयानक रात के विषय में बहादुरी की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। वर्ष 1998 में जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक की पहली समुद्री यात्रा पर एक प्रसिद्ध फिल्म का निर्माण किया। यह एक गंभीर और दुखद फिल्म है। इस फिल्म को देखकर बाहर आने वाले लगभग सभी लोगों की आंखों में आंसू से भरी हुई रहती हैं। हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।